So today we are going to start, okay, our the very important chapter. What you can say, the chapter number 11 is sitting arrangement. अब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एलर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, along with the blood relation, number series and direction test. From this chapter you are expecting to get around 4 marks, 4 to 5, maximum 5 6, but 4 marks you definitely get, okay, from here. The name itself suggests sitting arrangement. Sitting means sir क्या? सोचो कि अभी चेतन आप जहां पे बैठे हुए हो, ओके, वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ ना, सपोज इन द राइट हैंड साइड you have a chair and left hand side you have a chair. Now let's say someone sitting in the right hand side of your right hand side chair. So in this case, can I say that Chetan is next to the second of the very first chair? सुनना मेरा बात, क्या बोला मैंने? Chetan is second to the next, sorry, Chetan is the next to the second of the very first chair. इसका मीनिंग, आप जो फर्स्ट चेयर में बैठे हुए हैं ना, मतलब फर्स्ट चेयर जो है ना, उसका सेकेंड चेयर में आप बैठे हुए हो, एंड चेतन इज सेकेंड फ्रॉम वेरी लास्ट चेयर ऑफ द सिटिंग. अरे चेतन, आप सोचो, आपका अगर लास्ट चेयर जो है ना, अगर आप राइट हैंड साइड or left hand side from any side else, if you take a decision that suppose let's say कि your right hand side is the last chair because your left hand side is the first chair, let's say for an example. Now from both the aspect, from the very first case, in that scenario you are the second because you are in the middle position, there are only 3 chairs, and from the very last case also, from the very last chair you are also again the second position from the very bottom chair. So the very important thing is that how we are going to arrange a particular things or a group of person in a pre-planned manner so that we can get a particular arrangement based on certain terms and condition. We are going to get a particular arrangement based on certain terms and condition. It is called sitting arrangement. आप देखे होंगे कि आपका जो स्कूल से, आपके जो कॉलेजेस है, in that there are multiple tables are there and students are sitting in the table to continue the classes, and in the tables there are multiple tables in the right hand side as well as in the left hand side. Now maybe it's possible in both the side there are 8 table in each of the side. Now total table is 16. Now I say from the very right hand side, I want to know the name of the students who is sitting in the fourth table from the very first table of the right hand side. जो फोर्थ टेबल में बैठा हुआ है ना, उस स्टूडेंट का मुझे नाम जानना है जो कि राइट हैंड साइड से और वेरी फर्स्ट टेबल से लेके वो 4 नंबर टेबल तक, from the very first table up to the fourth table. Got it? So that is how we can easily identify an object in a pre-planned manner so that as per the terms and condition we can arrange them in a order. We can arrange them in a order. एक order में हम लोग उसको arrange easily कर सकते हैं. That is what our motto. Okay? हम लोग उसको एक arrangement के हिसाब से orderly हम लोग उसको arrange कर सकते हैं. तो सर मुझे एक चीज बताओ, आप देखो एक चीज है यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग अभी डिस्कस करते, देखो यहाँ पे, नाउ लेट्स से सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट. अगर हम लोग इसको डिस्कस करते तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक बॉक्स है, here it is a box, here it is a box, here it is a box. Now let's say suppose it is my left hand side, it is my right hand side. So it is the first chair, second chair, third chair, fourth chair. Got it? Now I say the cocktail bird, the cocktail bird is sitting to the next of the crow. सुनना मेरा बात क्लियरली. The cocktail bird sitting to the next to the crow. सर क्रो के बाद वो बैठा हुआ है,
नेक्स्ट टू द क्रो, क्रो जो है ना उसका नेक्स्ट जो बर्ड है वो कॉकटेल है. नाउ प्लीज फाइंड आउट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन in which box the cocktail bird is sitting. In which box the cocktail bird is sitting. Now here we can easily say it is the process of making an arrangement, because I want to arrange the birds in a box of a group of person to sit accordingly. लिखना मेरे साथ, हाँ प्लीज एवरीवन मेरे साथ लिखना. To sit accordingly, okay, to a pre-planned manner, to a pre-planned manner is called sitting arrangement. I am repeating again. Is called sitting arrangement. I am repeating again. It's called sitting arrangement. So what I've written here? Process of making an arrangement of a group of person to sit accordingly to a pre-planned manner is called sitting arrangement. Is called sitting arrangement. देखो कितना सुंदर है ना डेफिनेशन इसका. लेकिन सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली देयर शुड बी, प्लीज नोट डाउन, देयर शुड बी सम टर्म्स एंड कंडीशन. कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो सर एग्जिस्ट करने चाहिए. कुछ टर्म्स एंड कुछ कंडीशन तो सर एग्जिस्ट तो करने चाहिए सर. कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए. चेतन एंड रक्षिता नोट कियो ये? रक्षिता छोड़ दो, चेतन नोट कियो? नोट हो रहा है यहां से? ग्रेट, गुड. तो सर ये समझ में आ गया, ये क्लियर है. नाउ गाइस, सीटिंग जो अरेंजमेंट होता है ना वो तीन तरीके का होता है. सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे इसको बोल सकते हो शॉर्टकट में. इसका तीन अरेंजमेंट है. क्या क्या होता है सर? एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, एक होता है लीनियर अरेंजमेंट सर, एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट सर, और थर्ड होता है पॉलीगॉन अरेंजमेंट. पॉलीगॉन एक एक करके समझते. सर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट वी हैव इन द सिटिंग अरेंजमेंट. नंबर वन इज दैट सर्कुलर अरेंजमेंट, sorry, linear arrangement, then circular, then the polygon arrangement. Now some basic things we have to identify and we have to understand why starting with that part. मैं linear, circular, polygon किसको बोलते हैं उसमें मैं आता हूँ. ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि सर्कुलर जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है. सर्कुलर लाइन, सर्कुलर जो अरेंजमेंट होता है वो एक सर्कल में कुछ ऑब्जेक्ट है. सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट एंड बेस्ड अपॉन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर अरेंजमेंट. मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा. सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और आइटम which is into the circle and based upon which we are going to understand the circular. Suppose सर सर्कुलर चलते और समझते. देखो भाई एवरीवन प्लीज देखना यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि सर्कुलर अरेंजमेंट. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप अगर सर्कुलर अरेंजमेंट को देखोगे ना तो आपको बढ़िया से एक चीज समझने को आएगा. क्या चीज सर? यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट में आप सोचो, आपका जो बुक है ना, द बुक यू हैव, you just think that you are sitting there and वो बुक आपके सामने, जैसे मैं अभी सीधा देख रहा हूँ बुक, वैसे ही देखो. आप सोचो ये जो सर्कुलर है, ये आपको जो दिख रहा है सर्कुलर, ये वाला जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, ये वाला जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, ठीक है? मुझे एक चीज बताओ, ये सर्कुलर में आप सोचो एक सिंपल सा चीज, यहाँ पे लेफ्ट राइट इस तरीके से, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ रुकना एक बार. अच्छा, तो आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो एक बार प्लीज. आप लोग ठंडे दिमाग से देखो प्लीज एवरीवन. मुझे एक चीज बताओ, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियरली? मुझे बताओ चेतन एंड रक्षिता, ये जो आपको जो सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, इस सर्कल में
आपको लग रहा है कि जो सर्कल के हिसाब से किया वो सही है? आप देखो एक बार, आप अपने तरीके से सोचना, एकदम ठंडे दिमाग से। आप मुझे एक चीज बताओ, पहले एक, आप लोगों के पास अभी शायद कंपास नहीं होगा, आप लोगों के पास सोचो, घूमो, ठीक है, एक बार कंपास को लेके घूमना है। आप अगर कंपास को लेके घूमोगे, एक बार यहाँ पे देखो, मेरा सर्कल देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं एक बार आपको सर्कल दिखाता हूँ। देखो मैंने ये जो सर्कुलर काटा ना, इसको कैसे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बोला ये लोग, किस तरीके से होगा वो एक बार समझना है मुझे, ठीक है, समझना है यहाँ पे, देखना। और यही मेन इंपॉर्टेंट है सर्कुलर में, और कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, लेफ्ट जो मूवमेंट होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है। क्या बोला सर आपने? लेफ्ट जो मूवमेंट होगा ना वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होता है। और राइट जो मूवमेंट होगा वो हमेशा सर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे सर। सर दो चीज याद रखने का, बहुत सिंपल सी चीज, जो लेफ्ट कॉम्बिनेशन आपको बोलेगा ना, जो लेफ्ट मूवमेंट आपको बोलेगा, ऑलवेज रिमेंबर, लेफ्ट मूवमेंट ऑलवेज बी अ clockwise movement and right movement always be a anti clockwise movement। एंटी क्लॉक हमेशा इस तरीके से घूमता है। आप सोचो, मेरा कॉपी देखो, आपको समझ में आएगा, उल्टा। और जो लेफ्ट है ना वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सर हम लोग अगर इस पोजीशन में, देखो मेरा पोजीशन देखना, इस पोजीशन में तो क्लॉकवाइज इधर जाना, इधर, तो इस पोजीशन को हम लेफ्ट बोलेंगे सर। देखो आपके बुक के साथ मैच कर रहा है, इस पोजीशन को हम लेफ्ट बोलेंगे। और इस पोजीशन को अगर इस तरफ जाएगा तो इसको हम राइट बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे सर? राइट बोलेंगे। तो एक पोजीशन को हम लेफ्ट बोलेंगे और एक पोजीशन को हम राइट बोलेंगे। जो राइट के तरफ जाएगा वो लेफ्ट है, और जो लेफ्ट के तरफ, आपके हाथ के लेफ्ट के तरफ आ रहा है वो राइट है। देखो सोचो ठंडे दिमाग से। आप देखो मेरा जो ये है ना, अभी देखो मेरा हाथ देखो, अब मेरा जो हाथ है यहाँ पे देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, हाँ, और ये मेरा राइट हैंड है। मेरा जो राइट हैंड तरफ जा रहा है वो क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा, और इसलिए वो लेफ्ट है, उल्टा हो गया। और जो लेफ्ट के तरफ जा रहा है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपका राइट है। लेकिन आपको यही सोचना है, जो क्लॉकवाइज होगा वो लेफ्ट मूवमेंट होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो राइट मूवमेंट होगा सर। समझे? तो सर अगर इस पॉइंट पे अगर हम है, तो अगर इधर आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सर लेफ्ट होगा। और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो राइट होगा सर। एरो को फॉलो करना है यहाँ पे। तो सर अगर इस पॉइंट पे है तो क्लॉकवाइज मतलब इधर जाना, तो ये लेफ्ट है सर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर इसको राइट बोलते हैं। देख रहा हूं मेरा मैच कर रहा है पूरा ए टू जेड। और सर अगर फिर इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पे आगे, तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे सर? लेफ्ट बोलेंगे, जो ऊपर जा रहा है। और जो नीचे आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसको राइट बोलेंगे। इस तरीके से सर आपको जजमेंट लेना है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में। when there are lot of person sitting in a particular table is a round shape like that, circular, then you have to take your decision based on the formula or based on the technique, that is clockwise and anti-clockwise, and then form your decision who is residing right hand side, who is residing left hand side। Rakshit and Chetan, is it clear guys? Pakka? Pura? Great। तो अभी चलो हम लोग एक बार एक क्वेश्चन देखेंगे और पूरा पानी हो जाएगा, ठीक है? इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए प्लीज, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल्दो इट इज रिटन इन बुक, बट लिखना थोड़ा बेटर रहता है, आपको थोड़ा पढ़ने में इजी होगा। ऑलवेज क्लॉकवाइज इज अ लेफ्ट मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज इज अ राइट मूवमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी मतलब राइट और क्लॉक मतलब लेफ्ट, सिंपल। अब चलिए समझते हैं सर इसको, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा, राइट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। राइट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, and right movement is called anti-clockwise rotation। The above presentation is for the 4%, but for any number of percent, the direction is taken in the same manner। The point we have discussed just before 1 minute, that whenever we do presentation of circular sitting arrangement, it is not only the left and right, rather it is true for all the object, maybe more than 4। We are discussing about the 4, but maybe more than 4।
all about that part. Okay, for rectangular and sequence arrangement, directions are taken as discussed in two rows sequence. I'm repeating again. For rectangular and sequence arrangement, directions are taken as discussed in two rows sequence. Clear? सर समझना, देखो क्या लिखा है पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर एंड सीक्वेंस अरेंजमेंट है तो डायरेक्शन को बोथ साइड से देंगे, क्योंकि सर सर्कुलर में बोथ साइड ही होगा. इन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑलवेज देयर इज अ सेंट्रिक पॉइंट एंड यू कैन मूव अराउंड द अर्थ और यू कैन मूव अगेंस्ट द अर्थ. ओके, मैंने क्या बोला, देखो मेरा वर्ड में बहुत भारी वर्ड है थोड़ा. आई सेड दैट योर अरेंजमेंट मे बी अगेंस्ट द अर्थ, योर अरेंजमेंट मे बी अराउंड द अर्थ. मतलब आप अगेंस्ट द अर्थ जाओगे तो उल्टा घूमना पड़ेगा, और अराउंड द अर्थ जाओगे तो आपको अर्थ के साथ मूवमेंट करना पड़ेगा. सो व्हेन यू मूव विद द अर्थ, इट इज you call clockwise, and when it is the against the earth, it is called anti-clockwise. So anti-clockwise means you are moving towards the right, and clockwise means you are moving towards the left. That's also very simple. ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी सिंपल, ये चीज आपको याद रखना है. आप सोचो, आप सोचो, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा इसको इजी करने के लिए. देखो देखो गाइस, इसको इजी में थोड़ा करता हूँ, आपको थोड़ा और इजी लगेगा. क्यों इसको मैं राइट किसको लेफ्ट बोल रहा हूँ. अगर मान के चलो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, हियर देयर इज अ पर्सन, ओके, हुज फेस इज टुवर्ड्स यू. जस्ट थिंक, हुज फेस इज टुवर्ड्स यू, वो आपको देख रहा है, वो पीछे नहीं है, वो आपको देख रही है. इट इज द फ्रंट साइड ऑफ द पर्सन. तो इफ इट इज द फ्रंट साइड ऑफ द पर्सन, नाउ थिंक, दिस इज इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. देखो मैच कर रहे हैं कि नहीं. दिस इज इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. तो ऊपर में मैच कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट. अगर इसको थोड़ा घुमा दो ऐसे, इसको ऐसे थोड़ा घुमा दो, जस्ट स्विंग इट. इफ यू स्विंग इट, ये लेफ्ट हैंड है ना, ये नीचे आएगा, राइट हैंड है ना ऊपर आएगा. फिर से इसको स्विच करो तो वो लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, राइट हैंड इधर जाएगा. फिर स्विच करो, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड नीचे जाएगा. फिर स्विच करो, वो सीधे आ जाएगा. दिस इज द लॉजिक based upon which we are discussing the circular arrangement in a sitting arrangement chapter. The movement of the circular typically based on the face of a person. Typically based on the face of a person. Based on the face, you have to arrange them in a sequential order. You have to arrange them in a sequential order. That is very true and that is very important. एक sequential order में होना बहुत जरूरी है सर. सो आई होप कि आपको समझ में आया है, और एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा पानी हो जाएगा. चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. देखिए एवरीवन, प्लीज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 4 ladies A, B, C and D and 4 gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle around a table. I am repeating again. 4 ladies A, Sir B, Sir C, Sir D. अच्छा, 4 ladies है A, B, C and D and 4 gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle around a table facing each other. अच्छा, सब अपने आप को ताक रहा है, सब अपने आप को देख रहा है सर. एवरीवन सीइंग ईच अदर. लिसन वेरी केयरफुली. A, B, C and D and 4 gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle around a table facing each other. अब कंडीशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था जब डेफिनेशन लिखा था, देयर शुड बी सम टर्म्स एंड कंडीशन. नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड. इट मींस one gentleman, then ladies, then gentleman, then ladies, then gentleman, then ladies. No two ladies or gentlemen are sitting side by side. C, who is sitting between G and E, is facing D. C, who is sitting between G and E. So one point we have find out that who is sitting in between G and E, okay, is nothing but C. And who is facing towards the D? C is facing towards the D, but sitting around in between G and E. F is between, F gentleman is between D and A ladies, but facing towards the G. H is to the right of B.
H is to the right of B. H जो है ना वो B के तरफ देख रहा है, सॉरी राइट है, B के राइट के साइड में. Who is sitting left of A? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है. आई होप सो एक बार पढ़ लो और समझो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन इसका करवाता हूं. एक बार पढ़ लीजिए प्लीज गाइस, एवरीवन एक बार प्लीज पढ़ लीजिए. देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं. ए बी सी एंड डी आर 4 लेडीज. फाइन सर, ये समझ में आ गया. आफ्टर दैट ई एफ जी एन एच आर 4 जेंटलमैन. वी ऑल्सो गेट इट. नाउ दे सेड क्लियरली they are sitting in a circle around a table facing each other, and obviously gentlemen then ladies, then gentlemen then ladies, then gentlemen then ladies, like that. No two gentlemen and no two ladies will be sitting to each other. कोई भी अपने अपने फेस में मतलब ईच अदर बैठ नहीं पाएंगे. दो लेडीज आसपास में बैठ नहीं पाएंगे. उन लोगों को अलग बैठना पड़ेगा सर, उन लोगों को अलग बैठना पड़ेगा सर. ओके, got it sir? And C is facing between the G and E and is facing D. F is between D and A and facing G. H is to the right of the B. Who is sitting left of A? A के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? E is facing whom? Who is immediate neighbor of B? अब आपको ये बताना है. पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं. देखो मैंने एक काटा भी है, आप लोग पढ़ लो. अब मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ. देखो सबसे पहले एक चीज समझना, that is not a critical part, but you have to make a solid idea when you do this types of question. Okay, let's say ए सबसे पहले है ना, तो एक काम करते, ए तो लेडीज है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी ये लोग लेडीज है, और ई एफ जी एन एच ये लोग क्या है, जेंटलमैन है. तो व्हाट यू कैन डू, you can take any point for your starting phase. I am repeating again, you can take any point for your starting phase. की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी स्टार्टिंग फेज में पकड़ सकते हो. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जब मैं शुरू करूंगा, घड़ी का क्लॉक यहाँ पे रुकता है ना 12 बजे. देखो लॉजिक क्या है, सेंस क्या है, घड़ी का क्लॉक हमेशा 12 बजे यहाँ पे रुकता है ना, तो यहाँ पे मैं ए को पकड़ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए को पकड़ ले रहा हूँ. याद रखना, आई एम टेकिंग ए हेयर. ओके, मैं यहाँ पे ए को पकड़ ले रहा हूं, तो मेरे लिए इजी होगा यहाँ पे ए को पकड़ने में. नाउ द क्वेश्चन सेज, अब क्वेश्चन देखना थोड़ा. क्वेश्चन सेज कि नो टू लेडीज एंड जेंटलमैन सिटिंग ईच अदर, मतलब ए के बाद नो बी नो सी नो डी, बट ई एफ जी एन एच कैन सिट. एंड ऑल्सो द क्वेश्चन सेज एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग टूवर्ड्स द जी. एफ इज बिटवीन डी एंड ए. अच्छा सर डी कौन है, डी है तो एक लेडीज है ना. अब क्वेश्चन इज दैट डी इज अ लेडीज एंड हु इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड डी. सॉरी, एफ इज अ लेडीज, सॉरी एफ इज अ जेंटलमैन हु इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड डी लेडीज. अब क्वेश्चन आता है सर डी को यहां पे लिखे या यहां पे लिखे, क्योंकि ए और डी के बीच में एफ ही है ना, तो ऑब्वियसली ए के बाद डी होगा. देखो समझो लॉजिक, दे सेड इन द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको एक बार. आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ए 3 नंबर, हाँ थर्ड कंडीशन, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी. इट मींस ए एंड डी आर द लेडीज in between whom F is sitting. It means either you can say D is residing here, sorry sitting here, or D is sitting here. Simple सा बात, either D यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा. Now we have to decide where D is residing. That is what you have to understand. कि D कौन सा जगह पे बैठा है सर, यहाँ पे बैठे यहाँ पे बैठे, वो सोचो आप. Where is D is left. Now next is that they said also C. अब देखो और एक चीज यहाँ पे समझाता हूं मैं, कंडीशन एक एक करके समझते हैं. H is to the right of B, H is into the right of B, ठीक है. C who is sitting between G and E is facing towards the D. अच्छा, it's a true sense. C is facing towards the D. Who is sitting between G and E? अच्छा, G and E के in between वो बैठा है कौन, C बैठा है जो D को फेस कर रहा है. C बैठा है जो D को फेस कर रहा है. आप समझना मेरा बात, यहां पे एक ट्रिक्स आएगा. हियर द ट्रिक्स विल अराइजेस. ओके, हियर द ट्रिक्स विल अराइजेस. आप समझना मेरा ये, इसको देख के क्वेश्चन से सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई. जी एंड ई बोथ, जी एंड ई बोथ आर जेंटलमैन एंड इज फेसिंग टुवर्ड्स द डी.
आप सोचो एक चीज ठंडे दिमाग से, देखो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूं, द क्वेश्चन इज सी रिसाइडिंग बिटवीन जी एंड ई, मे बी ई पहले जी बाद में या जी पहले ई बाद में, लॉजिकली समझना, सी इज रिसाइडिंग बिटवीन जी एंड ई, एंड वो किसको ताक रहा है, टू whom it is facing, चेतन, टू whom it is facing, डी, वो डी को फेस कर रहे हैं, गॉट इट, वो डी को फेस कर रहे हैं सर। अब सर देखो ये जो डी को फेस कर रहा है, अब यहाँ पे समझ जाना है मुझे लॉजिकली इन द सेंस कि अगर यहाँ पे बोल दिया है कि सर जो मेरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में अगर यहाँ पे मैं डी को बैठाता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम यही होगा क्योंकि डी के इन बिटवीन में ई एंड जी होगा, जी एंड ई होगा, जी एंड ई होगा, यहाँ पे भी जी एन ई हो सकता है, यहाँ पे अगर सी बैठाऊंगा तो जी एन ई हो सकता है आराम से। बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो अगर ए एंड डी दोनों पास पास में है तो क्लॉकवाइज चलते, तो डी में यहाँ पे होगा। देखना मेरा लॉजिक मैंने क्या बोला अभी, एज दे सेड एफ इज बिटवीन डी एंड ए, so we are thinking we should go with the clockwise. If A is sitting here तो D is sitting here, got it? अच्छा सर A and D के बीच में F है सर, यहाँ पे F है as per the question, and the question also says that C is facing towards the D, तो C यहाँ पे होगा, C के opposite facing में D है, and in between C and D, C in between the C there is a G and E, तो यहाँ पे G है और यहाँ पे ई है सर, तो यहाँ पे कौन होगा, बी होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे कौन होगा, एच होगा, देखो मैच कर रहा है। ओके, एंड क्वेश्चन सेज एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच इज द राइट ऑफ बी, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है सर। देख रहे हो मैंने किस तरीके से इसको फॉर्म किया, थोड़ा पहले दिक्कत हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा ड्रॉ किया और इजीली समझ में आ गया। पहले हमको समझना है कि ए एंड डी है ना, दोनों आसपास में, और इन दोनों को आसपास में बैठाने के लिए अगर इधर से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। If I move A and D like this, it is become anti-clockwise because it's a right-hand side movement. But I have to move towards the clockwise, so that I took A here and D here, and in between them F is here. The second condition given, C is facing towards the D, so C is put it here. Obviously G and E is here. आप बोल सकते हो कि सर G यहाँ पे होगा, E यहाँ पे होगा, नहीं, क्योंकि it's clearly said that G के बाद E होता है। ओके, G के बाद E होता है, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, ई के बाद जी होता है। तो अब क्वेश्चन है कि सर बी के राइट हैंड साइड में एच है, अगर बी के राइट हैंड साइड में एच है तो डेफिनेटली बी के लेफ्ट हैंड साइड में आइदर जी और ई हो सकता है, गॉट इट, आइदर जी और ई कोई भी हो सकता है। सो दैट इज हाउ आई मेक जी हियर एंड मेक ई हियर, गॉट इट, दैट्स ऑल। और मैंने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है, चीज को सिंपल रखा है और काम कर दिया है। ओके, ई एफ एच और जी, यहाँ पे जी होने चाहिए थे लेकिन बट ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन सेज हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कौन है, ई है, ए के लेफ्ट में कौन है, ई है सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में रिटर्न हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, एंड आपका लेफ्ट ऑफ ए कौन है, ए का लेफ्ट पोजिशन कौन है, आपका लेफ्ट ए का लेफ्ट पोजिशन कौन है, बोलो तो मुझे, एफ, मैंने गलती बोल दी, ई बोल दिया, एफ है ना भाई, कौन है, एफ है, ठीक है, ए का लेफ्ट पोजीशन कौन है, एफ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर ई इज फेसिंग टू हुम, ई किसको फेस कर रहा है, डेफिनेटली ई फेस कर रहा है किसको, ई सर एच को फेस कर रहा है, परफेक्ट। एंड डेफिनेटली लास्ट क्वेश्चन, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर कौन है, जी और एच होगा, आंसर डन, बस हो गया। देखो कितने इजी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मतलब फॉर्म करने के बाद, नॉट सॉल्व, वंस यू फॉर्म दिस सर्कुलर ना, आफ्टर दैट योर क्वेश्चन बिकम वाटर, आपको आंसर दिख रहा है ऐसा होगा, बट क्वेश्चन को फॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वंस यू फॉर्म द क्वेश्चन बाकी आंसर आपको दिख जाएगा, आंसर आपका क्वेश्चन में ही है, सिर्फ आपको फॉर्म करने आना चाहिए। दैट इज हाउ वी सॉल्व बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते और समझते, देखो सर्कुलर पहले समझ लेते। क्वेश्चन नंबर 10 says 8%
A, B, C, D, E, F, G, and H are sitting around the circle. बढ़िया sir. They said 8% A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around the circle as given. Okay, it is given that they are sitting around the circle in the figure. They are facing the direction opposite to center. अच्छा, 8% है. A, B, C, D, F, G, H are sitting around the circle. तो आप एक काम करो, A first है ना, तो arrange it like a clockwise. Arrange it like a clockwise. Okay. They are facing the direction opposite to center and they are facing direction opposite to the center. समझ रहे हो मेरा बात? क्या बोला है देखो, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है. They are facing direction opposite to the center. Center is this. Center is this. मिडिल वाला जो पोजीशन है. उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब जो बैक साइड है ना आपका बी का, जो बैक साइड है वो सेंटर को दिख रहा है. गाइस प्लीज लिसन वेरी वेरी टेंटेटिवली क्लियरली. दे सेड all the A, B, C, D, E, F, G, H are facing, are placing in the circle, and the center, they are facing the direction opposite to the center. It means it is a direction and B's backside is into the center. B's backside is into the center front. If they move up to 3 places anti-clockwise, अच्छा, they are moving anti-clockwise, मतलब B move 3 places A, G, H, G, 3 places anti-clockwise, then B will face west. Obviously अगर B उल्टा सोचेगा और उल्टा जाएगा तो B वेस्ट साइड में आ जाएगा. E become, देखो E यहाँ पे ना, E become ईस्ट पे चला जाएगा. 1 2 3 ईस्ट की तरफ जा रहा है गाइस. अच्छा सॉरी, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ना. अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इस तरफ जाएगा. देखो मैंने रॉन्ग बोल दिया थोड़ी. इस तरफ जाएगा. ई उल्टा घूमेगा तो इस तरफ जाएगा. H विल फेस नॉर्थ टू वेस्ट. H जो है ना वो किस तरफ जाएगा? उल्टा आएगा. तो नॉर्थ और वेस्ट को देखेगा वो. ये नॉर्थ है और वेस्ट की तरफ देखेगा इस तरफ. करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज है. और A विल फेस साउथ. अच्छा, A अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो वो साउथ को फेस करेगा, मतलब 1 2 3 नीचे आएगा. नीचे देखो एंटी क्लॉकवाइज. समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरा बात में जो बोल रहा हूं? Chetan and Rakshita, are you getting the point? If they are placing anti-clockwise, B will move against A, H and G, then E will going to B, west, sorry. If E will face east, because E is going to move towards the east, वो D, C, B के तरफ जाएगा. H will face towards the opposite, that is वो आएगा साउथ के तरफ. सॉरी, एक्चुअली आपका जाएगा G, F and D, वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाएगा. एक्चुअल में आप बोल सकते हो नॉर्थ वेस्ट ही है यहाँ पे. H जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एक्चुअली में नॉर्थ वेस्ट लिखा, आई थिंक सो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा. एंड A विल फेस अराउंड द साउथ, वो नीचे आएगा. A तो नीचे आएगा ना, तो नीचे तो साउथ ही है ना. ना फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन इन इंफॉर्मेशन. ये देखो, आप देखो कितना सुंदर है. ओरिजिनल पोजिशन इज दिस. Original position is this. When they move, the B position become in the west side. A will move towards the A. देखो आप देखो यहाँ पे, देखो ये ओरिजिनल पोजीशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला ओरिजिनल है, राइट हैंड साइड वाला न्यू पोजीशन है. आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर A मूव करेगा नीचे तो वो 3 प्लेसेस जाएगा. इट विल गो टू द 3 प्लेसेस एंड गो टू द A प्लेसेस. सो A प्लेस विल बी रिप्लेस बाई A. अच्छा, if B move 3 places, then B will go to the G places. It's written there. And if E is moving, then E will go to the 3 places up to the B. So E become here, that point. And if H moving towards the 3 places, it will go to the E. So H is the south new position. समझे? पूरा अलग हो गया. ये H का जो पॉइंट है ना नॉर्थ वेस्ट, ये आई थिंक साउथ पोजीशन होना चाहिए. दैट्स अ रॉन्ग. ठीक है. नाउ गाइस सी जस्ट हाउ द क्वेश्चन आर फ्रेमिंग. दिस इज द वे you can solve the sitting arrangement का circular permutation arrangement. This is the basic way we can solve the circular arrangement. अब और क्वेश्चन चलते हैं सर. देखो इसमें कुछ है सर्कुलर का. हाँ, यहाँ पे सर्कुलर भी सीखेंगे हम लोग. ठीक है, देखो they said 5 people A, B, C, D and E are seated about a round table. Okay, अच्छा, A, B, C, D and E are seated around the round table. Every chair is spaced equidistant. अच्छा, means every chair is having a equal distance in between them. Okay,
मतलब the gap in between a chair, in between two chair is similar to the gap of the other chairs from adjacent chairs. C is seated next to A. अच्छा, C is seated next to the A. A is seated 2 seats from D. अच्छा, D के 2 seats के बाद A बैठा हुआ है. B is not seated next to A. B is not seated next to the A. Which of the following is must be true? Now guys, see here. A, B, C, D and E है. Okay. C is seated next to the A. C A के बाद बैठा हुआ है. C is seated next to the A means after A, C is seated. Now B is not seated next to the A. So B is not seated next to the A. A is seated 2 seats from D. So A is seated 2 seats from the D. So after 2 seats, A is sitting after the D. Which of the following must be true? D is seated next to the B. D is seated next to B. अच्छा, D is seated next to B. E is seated next to the A. That is what they wanted to know. Now guys, see here. Solution को देखना थोड़ा. ये बहुत critical arrangement है. Now from the above example, what are the possible sitting arrangement you have? The question is the UPSC question. I understand the difficulties level of question. This is the UPSC question. And if you see the question, from the given question, we have multiple arrangement. We have multiple arrangement. There are 5%, A, B, C and D. The first condition is that C is next seated to the A. If C is next seated to the A and A is seated to the next from the D, sorry, 2 seats from D and B is not seated to the next to the A. So the very first case we can write here, C here in the above position, who is next seated to the A and A is 2 seats from D. So D के बाद दो second position. This is C is the first position, second position is sitting in the A. And obviously A के बाद तब क्या होगा? They said B is not seated next to A. So definitely A के बाद जो आएगा वो आपका E होगा, B नहीं होगा. And E के बाद जो आएगा वो B होगा. Because B is not seated next to A. So B and E are not linked as a next seater. Rather after A, definitely it's a E. And after that B. Or you may have another arrangement is that they said C is next seated to the A. Means सबसे पहले क्या आएगा? C is next seated to the A means A is coming first then C. Question को समझना guys. C is seated next to A means after A, C will come. So if I consider clockwise, A is the very first and then C, A is seated 2 seats from D. So if D is, A is seated here, so after 2 place there is a D. So first place and next place there is a D and B is not seated next to A. So after the A and D, there is a gap of 1 place where B is not going to sit as per the condition, rather E is going to be seated. So in the opposite direction, after the C, there is a B. This is another arrangement. And now come to the third arrangement. आप देखो यहाँ पे क्या दिया थर्ड अरेंजमेंट में. आप सोचो ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये देखो क्या दिया है. अब सिमिलरली इफ यू सी हियर कंसिडरेबली, ये EAC एंड DBA ये सेम है. अब यहाँ पे देखो CAEA. नाउ A के बाद क्या है? CA सर. एंड आफ्टर 2 प्लेस A इज रिसाइडिंग. C के नेक्स्ट टू कौन है? A है. लेकिन यहाँ पे बोले C इज नेक्स्ट सीटेड टू द A. तो ये वाला आंसर सही नहीं है. ये वाला सही नहीं. देखो ये कैसे आया समझ में सर? यहाँ से. अब यहाँ पे बोला है ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and not 2. अब देखो C is seated next to B, सॉरी D is seated next to B. तो D के बाद B है and E is seated next to A. E is seated next to A. Now guys, if you see and consider in every arrangement, if you see E is seated next to A, E is seated next to E. Okay, E is seated next to A and D is seated next to B. तो B के बाद obviously D आ रहा है सर. देखो हर एक सिचुएशन में B के बाद D आ रहा है, B के बाद D आ रहा है हर एक सिचुएशन में, और A के बाद E D E भी आ रहा है ना. यहाँ पे देखो क्या लिखा है गाइस, पढ़ना क्वेश्चन को. It is written E is seated next to A means after A E will come clockwise. तो ये 4 नंबर जो फोटो है ना, E is coming after A. बट बाकी का जो 3 फोटो है यहाँ पे, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकेंड, दिस वन थर्ड. इफ यू सी दिस, सॉरी, इन द फर्स्ट केस and the fourth case, E is coming after A. That is a true for the second one. E is seated next to A.
And for the second photo and the third photo, it is not true. Although we have two matches, and also we have two pictures where A is seated before E or E is seated next to the A. So we can say both the one and the two opinion is true. So our answer is B, C. Both one and two are the two. Clear? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है. आप रिपीटिंग अगेन, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो, आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज भी है. एक सेकेंड, एक्सरसाइज में बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन में चलते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन फॉर अस टुडे. A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle facing the center. समझना मेरा बात बहुत ध्यान से. अच्छा गाइस, कुछ चीजें ऐसा होता है जो आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन पढ़ के. इन दिस क्वेश्चन दे से दे आर ऑल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर. मतलब एच इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर. एक क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे जहां पे एच इज फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर. हियर एच इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर मींस एच का फेस एंड सेंटर का फेस दोनों सेम है. फेस ऑफ सेंटर, फेस ऑफ एच दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. ठीक है? It means A, B, C, D, E, F, G and H are not seated like a same order. D sits third to the left of A. E sits to the immediate right of A. Acha, D is seated in the third position of the A from the left hand side, means clockwise. E sits to the immediate right of A, means after A, very immediate right side is a E. Okay, right side. B is third to the left of D. It means D is sitting, and when D is sitting, after the third position, the B is sitting. G is second to the right of the B. Acha. C is neighbor of B. C is third to the left of H. Very good. Who amongst the following is sitting exactly between F and D? क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे. पहले का माय रिक्वेस्ट इज दैट क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो. प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और क्वेश्चन समझो, उसके बाद में हम सॉल्यूशन करवाते हैं. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, प्लीज एवरीवन. पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लो एक बार, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. उसके द क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए सर्कल. तो मुझे पता नहीं है कि सर्कल में किस तरीके से वी आर गोइंग टू फ्रेम देम. दे आर सेड. देखो यहाँ पे बहुत समझने का चीज है, ये ऐसा नहीं कि बहुत इजी है. आपको यहाँ पे एक चीज वर्ड बोला, ये अंडरलाइन करना. फेसिंग द सेंटर मतलब फेसिंग द सेंटर मतलब दे आर सिटिंग लाइक फेसिंग. मतलब अगर मेरा हाथ देखना, अगर इधर आएगा, इधर अगर वो एफ एच इस तरीके से आ रहा है तो वो लेफ्ट है, क्योंकि वो फेस कर रहा है. फेस मतलब सीधे. देखो आप समझो एक बार, आप मेरा कॉपी को समझो एक बार, कॉपी देखना मेरा. अगर फेसिंग बोला है ना, मतलब ये अगर आपका सर्कल है, अगर फेसिंग बोला है मतलब ये जो इंसान खड़ा है ना, इस इंसान का लेफ्ट हैंड साइड इधर है और इस इंसान का राइट हैंड साइड इधर है, क्योंकि वो फेस कर रहा है. फेस मतलब उसका फेस सेंटर के बराबर है. गॉट इट? उसका फेस सेंटर के बराबर है सर. द फेस इज एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंटर. So when he moves towards this, it's the left, and when he moves towards this, it's the right. Please be noted. These are very important point in your exam. आप लोग इसलिए यहाँ पे ना जो फेसिंग वाला वर्ड है एंड ऑपोजिट टू द फेसिंग जो है वो मैटर करता है. द मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर इज दैट व्हाट इज द फेसिंग एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ फेसिंग. That is very true and very important for our case. So in that case, if you see, it is the human being and it is facing towards the center, means face is towards the center. So अगर इस तरफ जाएगा तो लेफ्ट होगा, अगर इस तरफ जाएगा तो राइट होगा सर. क्लियर? नाउ they said that D sits third to the left of A. अच्छा,
डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मीन्स ए अगर मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज, तो तब ए अगर मूव करेगा क्लॉकवाइज, तो इन द थर्ड पोजीशन डी सिटिंग, ओके। ई सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, अच्छा ई जो है ना वो इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब ए अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नेक्स्ट सिटिंग में ई है, ओके। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, अच्छा डी के थर्ड में क्या है, बी है सर, थर्ड पोजीशन में, लेफ्ट पोजीशन में मतलब क्लॉकवाइज जाएगा। जी इज द सेकंड राइट ऑफ बी, ओके। अगर बी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो सेकंड पोजीशन में जी है। सी इज द नेबर ऑफ बी, सी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ एज, सी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ एज। अब ये आप अरेंज कैसे करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज इट, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अरेंज दिस, seriously guys, believe me, it's a very difficult task to arrange it. Now how could you do this, how could you link up this one, हाउ कुड यू लिंक अप दिस वन, ये सबसे मैटर करता है, आप किस तरीके से लिंक अप करोगे और समझोगे कैसे कि किसको आगे और किसको बाद में बैठाना है, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू, करेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी द चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। आप किसको कैसे बैठाओगे वो क्वेश्चन अराइज करेगा यहाँ पे दिमाग में सबसे पहले। क्लियर है? अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे बताओ, समझना मेरा बात यहाँ पे, ऑलवेज अंडरस्टैंड के दैट go with the perfect information, when we start with an information, go with the perfect information, please be noted, go with the perfect information when you start it. So in this case, if I am going through that part, this question is having little bit difficult days to arrangement them in the order, that is what very important, okay. So आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, क्लॉकवाइज दिया है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्लॉकवाइज दिया है गाइस, क्या दिया यहाँ पे, क्लॉकवाइज दिया है, क्योंकि डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, आई एम रिपीटिंग अगेन, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सो अगर लेफ्ट ऑफ ए है ना तो इसको कैसे करोगे, तो देखो मैं कैसे करता हूं, अभी एक चीज आप समझो, अगर सीटिंग इस तरीके से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सर। और यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले एक काम करना आप लोग 8 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेना ऐसे, ओके। 4 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट, 8 ऑब्जेक्ट, ड्रॉ लाइक दिस, देन सर व्हाट हैपन, अच्छा दे सेड डी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सो इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर ए है, लेट्स से सपोज अगर मैं ए यहाँ पे कंसिडर करता हूं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पोजीशन यहाँ पे क्या है, डी है, गाइस नोटेड डाउन विद मी, हाँ। इफ से सपोज मैं बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट ए इज सिटिंग हेयर, तो उसका थर्ड पोजीशन में कौन है, डी है, और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ई सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट राइट में ई बैठा हुआ है पे, करेक्ट गाइस, करेक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है, ए के राइट में ई बैठा है सर, गॉट इट। नाउ दे सेड बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सो बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सो डी के थर्ड लेफ्ट मतलब इस तरफ जाएगा, थर्ड पोजीशन मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे बी है सर, गॉट इट। आफ्टर दैट जी इज द सेकेंड राइट ऑफ बी, तो बी का सेकेंड राइट जी मतलब यहाँ पे जी है, सी इज द नेबर ऑफ बी मतलब यहाँ पे ई है, तो सी यहाँ पे होगा, बी के नेबर में ई है और उसके बाद अब सी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा सर, सी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एज, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एज मतलब एज के थर्ड पोजीशन में सी है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे सर एफ होगा, बचा है। डू यू गेट माई पॉइंट गाइस एवरीवन, किसी को डाउट है बताओ, डू यू गेट माई पॉइंट, चेतन, रक्षिता, इबादुर, आदिल, सर आप क्वेश्चन में आते, सर क्वेश्चन सेज दैट इज who amongst the following is sitting exactly between f and d, सर f and d के बीच में कौन बैठा है सर, h, सर f and d के बीच में कौन बैठा है सर, h, सर आपको कैसे पता, देखो ना पता है सर, ये देखो मेरा सिंपल सा चीज है, h क्या बोला है क्वेश्चन में,
सिंपल सी चीज है कि एफ एंड डी के बीच में कौन बैठे, एच, तो एच इज क्लियरली बिटवीन एफ एंड डी, ये यहां पे देखने से समझ में आ रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट three of the following four are alike in a certain way based on the information given above and so from a group which is does not belong to that group. बढ़िया क्वेश्चन है. They said three of the following four. अच्छा, out of the four option, three of the following four मतलब out of the four option there are three option which are alike in nature, means similar to the nature based on certain information given above and so form a group, and they are also forming a group, but there is a one odd which is not matching with the three option available here. ऐसा एक ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब चीज मैच करेगा. दे सेड ऐसा एक ऑप्शन है जो मैच नहीं करेगा, बाकी सब चीज कोई ना कोई अरेंजमेंट अपने आप से वो मैच करेगा, अपने आप से वो मैच करेगा. सर यही है. अब चलो एक एक करके समझते हैं. देखो, सबसे पहले डी एंड सी के बारे में सोचो. ठीक है, डी एंड सी. सर डीसी में क्या है रिलेशन, देखो यहाँ पे डी एंड सी जो है ना, देखो डी एंड सी जो है, अब देखो डी जो एंड सी जो है ना, डी के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन में सी है. ओके, डी के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन में सी है. ए एंड एच जो है ना, ए एंड एच जो है, ए एंड एच के ए के सेकंड पोजीशन में एच है, वो भी लेफ्ट हैंड पोजीशन से. देखो डी के लेफ्ट हैंड पोजीशन से सी है सेकंड पोजीशन में, एच इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द ए का लेफ्ट हैंड साइड. गॉट इट. ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई के सेकंड पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड में एफ है. सी और बी, सर ये ऑड है, थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सी और बी थोड़ा ऑड है ना. समझ रहे हो मेरा बात, कितना इजीली मैंने बताया. बुक्स में थोड़ा अलग किया, मैंने अलग किया. ए सो देखो, ए और एच जो है ना, ए का सेकंड पोजीशन में एच है लेफ्ट हैंड साइड से. गॉट इट. और सर यहाँ पे ई और एफ जो है, ई के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन में एफ है. सर डी और सी में, डी के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन में सी है, बट सी और बी नेवर आर से, तो दैट्स व्हाई सी एंड बी इज द ऑड ऑप्शन. ये आंसर होगा आपका. क्लियर है रक्षित एंड चेतन एंड आदिल, सी बी इज द ऑड ऑप्शन. दोनों तो नेबर है ना, मैच नहीं कर रहा है, कोई भी एंगल से मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अमंग्स द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एज. अच्छा, लेफ्ट ऑफ एज के सेकंड पोजीशन में बताओ, एज के सेकंड पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ई है, बी है या ए है, बताओ. हु अमंग्स द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एज. Who amongst the following second to the left of each, कौन है. थर्ड वन, फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है. करेक्ट. नेक्स्ट ऑफ एच है, लेफ्ट पोजीशन से बोला है, लेफ्ट फ्रॉम द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच. कौन है, ए है. यस. तो एच जो है ना, वो एच जो है, वो आप देखो यहाँ पे एच जो है, यहाँ पे मेरा कॉपी देखो एक बार, मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे मेरा कॉपी देखना, एच यहाँ पे, और क्वेश्चन बोला फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब ए जो एच खड़ा है ना, तो यहाँ पे देखना. अच्छा, यहाँ पे जो है, आई होप सो के आंसर थोड़ा गलत है. हाँ, एवरीवन प्लीज सी है क्वेश्चन में. यहाँ पे देखो एच जो है उसका क्या बोला, क्वेश्चन देखो, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सेकेंड पोजीशन में एच के लेफ्ट से, मतलब इधर जाएगा, तो जी होगा आंसर. यहाँ पे नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, मतलब डी होगा. समझो मेरा बात. यहाँ पे बोला है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, उसके सेकेंड पोजीशन में कौन है, हु इज सिटिंग इन द सेकेंड पोजीशन ऑफ लेफ्ट ऑफ एच, सो वो जी होगा. तो गलती से अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन चूज किया तो वो गलत है, नॉन ऑफ दिस होगा आंसर. जी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. हु अमंग्स द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी. अच्छा, जी के इमीडिएट नेबर कौन है, जी के नेबर कौन है यहाँ पे इमीडिएट नेबर, बोलो. जी के इमीडिएट नेबर कौन कौन है, डी एन सी है,
वेरी गुड, करेक्ट आंसर। जी के इमीडिएट नेबर डीएनसी है, परफेक्ट आंसर। 4 का आंसर होगा सी। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, ए के राइट के साइड में सी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितना इजी है, देखो कितना इजी है, देखो ए के राइट हैंड साइड में थर्ड पोजीशन में कौन बैठा है, सी है। थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3, बस हो गया सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है गाइस, इतना इजी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एक बार अगर फॉर्म कर लिए ना तो भाई रुकना नहीं है। एक बार अगर फॉर्म हो जाएगा ना तो बाकी तो भाई सॉल्यूशन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फॉर्म करना ही बस दूर का बात है, वो फॉर्म एक बार हो जाएगा बाकी क्वेश्चन सब सॉल्व है, कुछ दिक्कत वाला चीज नहीं है। तो गाइस मैं आपको बेसिक नहीं 4 क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर में करना है, बाकी मैं क्वेश्चन ये सब करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट दिन में क्वेश्चन करवाऊंगा ये सब। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन में 13 से 17 नंबर क्वेश्चन ये वाला करना है एक बार, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। आप पेज नंबर 11.11 में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है, नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन का, सॉरी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सीखे नहीं हो। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन अभी तक मैंने सीखा नहीं, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। जस्ट गिव मी अ सेक, मैं बोल देता कौन सा क्वेश्चन करना है। ये सब क्वेश्चन हम लोग खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। एकदम हम लोग बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चन को। आप लोग एक काम करना, आप लोग ना स्टेयर है, अच्छा स्टेयर है। कौन सा क्वेश्चन करता है मैं आपको बोलता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करना, क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, ट्राई करना है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8, बाकी जो होगा मैं कल ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं, सर्कुलर खत्म हम लोगों का, सिर्फ बाकी है पॉलीगन एंड सिर्फ बाकी आपका लीनियर। और कुछ हम ईयर का भी क्वेश्चन करवाएंगे, पहले ये कर लो, कल हम लोग लीनियर वाला कर लेंगे। लीनियर बहुत ईजी है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, और पॉलीगॉन भी बहुत ईजी है, ठीक है, इजीली हो जाएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, डन। चलो, थैंक्स अ लॉट, वी आर गोइंग टू मीट फ्राइडे, फ्राइडे मीट करेंगे हम लोग।